नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज NIRKB और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ, हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। टू ऑल ऑफ yours in China, ni hao. To all of yours in Japan, konnichiwa. Abariyako Jambo to viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. And those of you who haven't subscribed to the channel yet, please do so. जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, please सब्सक्राइब करें। When you click to that icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation. The icon there, the icon subscribe. You subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now. तो प्रदीप जी, I believe there was a major, to call it a top secret security meeting, etc., etc. is I think very passé. Nobody uses the word top secret anymore. लेकिन confidential meeting थी, जो सुरक्षा समिति है उसकी एक मीटिंग थी जो काफ़ी देर चली। प्रधानमंत्री जी उसमें थे, अमित शाह जी थे, आदरणीय सम्माननीय राजनाथ सिंह जी थे, Mr. Jaishankar, Dr. Jaishankar was also there. Everybody was there, and so were the heads of the IB, Mr. Dika, the head of RNAW, and of course the National Security Advisor Ajit Doval Sahab, and the three chiefs, by the way. और उसमें सबसे बड़ी बात कहे तो in fact Amarpreet Singh Sahab flew back from the northeast after that great show in the northeast, especially for this meeting. And something big is being worked out, especially with regard to Bangladesh. ये हो रहा है कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको ज़रा वाइडन करना पड़ेगा. We'll need at least 10 to 20 more kilometers of area. और कॉक्स बाजार जो है बांग्लादेश का जो पोर्ट है, which is so close to our northeastern states, we can actually walk through. कोई टेंशन नहीं है, 2 किलोमीटर दूर है वहाँ से. So I hope they actually do it, because otherwise what happens is that the Siliguri corridor is so small at the moment that the Bangladeshis, with the help of the Chinese or the Pakistanis, can actually disrupt something there, in spite of a huge Indian Air Force and Indian Army presence there. And that will be tragic, really and truly. And now you got the best coordinated units among all the forces. The super coordination. You got an NSA who believes that he's a superman, and his deeds, right from his first posting from Kerala, where we're talking about Ajit Doval, he has gone through the best of cases that ever India has come across. And then his narration of his deeds in Pakistan, where he was undercover as a beggar sometimes as something. And if he's a superman, where these kinds of things are concerned, and we got best coordination, we got indigenous weaponry, you got system tested weaponry. So it's time that we flex our muscles where Bangladesh is concerned. No, we need to take action, and there will be some action, and very very soon. क्या है कि भाई मैं तो सीधी सादी बात बोलता हूँ, अब क्या जो मर्जी हो, चलिए अभी तो मोदी जी हैं, तो लिहाजा मोदी जी का जहाँ तक सवाल है, मोदी जी ने पहले भी दिखाया कि भाई हम लोग एक्शन लेते हैं. लेकिन कोई भी सरकार हो, अगर मोदी जी की सरकार ना भी हो, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि कोई भी सरकार हो, एनी गवर्नमेंट विल बी फोर्स्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट व्हाट द बांग्लादेशीज आर डूइंग. जो बांग्लादेश अभी कर रहा है, आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा. इट विल हैव टू बी वेरी डिसाइसिव. और आज भी ये सामने खबर आ रही है कि द पाकिस्तानी ISI एंड द चाइनीज, दे वेरी 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 मच इन्वॉल्व इन एवरी वे इन द मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट. और नेचुरली उनका रुख जो है कोई प्रो हिंदुस्तानी तो हो नहीं सकता. विच इज़ वाई there are demands going on all over the place. Send Sheikh Hasina back, send Sheikh Hasina back. और मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है भाई 1959 में हम लोगों ने, भारत ने दलाई लामा जी को हम लोगों ने यहाँ पर पनाह दी कि आप यहाँ जाइए, because he had to run away after the Chinese invasion of Tibet, military invasion of Tibet, and where the Chinese uprising was brutally, the Tibetan uprising was brutally suppressed. और अब मोदी जी ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शेख हसीना जी को दिया है. बट द कांग्रेस इज सेइंग नो नो नो, वो अलग है, ये अलग है. भाई दोनों अलग कैसे हैं? बोथ वर लीडर्स इन देयर ओन राइट. बोथ their lives were in danger. They would have been killed if they had stayed on. Yes, and India gave them shelter. Yes, that's it. 1959. In fact, the Chinese protested. This is an internal matter
of China. And why the hell have you taken this guy over here? And by the way, the one party which supported the Chinese totally was the Communist Party of India. और आज तक A.B. बर्धन साहब बोलते हैं कि this Dalai Lama should not use Indian soil to target the Chinese. So all I'm saying is this is very strange as far as the Congress is concerned. Let's go straight. And they are a part of the India Alliance. Yes, they're part of the India Alliance, so I don't know what they want. They want Sheikh Hasina to be sent back to Bangladesh so she can be hanged? I mean, what? What kind of logic is this? What kind of illogic is this? ये मतलब प्रवृत्ति आती कहाँ से है कि भाई किसी को आप उधर भेज दें ताकि उनको फांसी हो जाए? She has been a very good friend of India, has always supported India everywhere in the United Nations. The Bangladesh under Sheikh Hasina has always attacked Pakistan and has always talked about the atrocities committed by the Pakistani army and by the Pakistani armed forces before 1971, which forced India to intervene militarily and take action and liberate Pakistan, liberate East Pakistan from West Pakistan. But the people today, they are not even grateful. ये सब लोग उन्हीं की औलाद हैं who used to sell their own women to the Pakistani soldiers. वो लोग हैं ये लोग. और हमारे कांग्रेस के जो लोग हैं और कांग्रेस यूनिवर्स के जो लोग हैं जान जान के बोलते हैं अरे भाई बांग्लादेशियों के खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं तो ये बांग्लादेशी जो आई हुई है उनके खिलाफ एक्शन कब लेंगे? This is the kind of rhetoric that we have to listen to right here on this show, and I think it's shameful. In any event, that's my opinion, but it's a free country. आपको जो करना है आप करिए. Let's go straight across to our guests. We've got a wonderful panel of guests right now. Let's go straight across to them. Dr. Pooja Mishra, how are you, ma'am? Namaskar. Namaste. I'm How very are good. you? Welcome to the show, ma'am. Ali Darwala sahab, mashallah. How are you, sir? From the BJP. How have you been, sir? Beautiful. Sushil Vyas sahab, how are you, sir? Namaskar. He's happy the way. अरे Eknath सुशील Shinde व्यास has जी और performed. अली दारूवाला साहब आज तो उड़ रहे होंगे साहब क्या? रामयाल जी जन्मदिन की शुभकामनाएं. Thank you so much, Vyas ji. By the way, Happy birthday. Thank you, Ali Darwala Sahab. Thank you so much. Thank you. it is Pradeep ji's birthday, right? Now, so Pradeep ji now today is 26 years old. आज 26 साल के हो गए प्रदीप जी. But I find it very strange. I mean, it's really and truly. Dr. Pooja Mishra, आप ये बताएं. आप चलिए बांग्लादेश के बारे में भी बात कर लेंगे अगर आपका दिल करे बात करने का तो प्लीज कर लीजिए. लेकिन ये योगी आदित्यनाथ जी को क्या हो गया? उन्होंने क्या बोला ये कि जैसे ही किसी गंभीर विषय के ऊपर कोई भी चर्चा होने वाली होती है तो दो नमूने एकदम भाग जाते हैं, एक दिल्ली वाला और एक लखनऊ वाला. मतलब क्या ये क्या है मतलब इसका? Why does he have to make these kind of statements? एक राहुल गांधी जी का जिक्र कर रहे हैं, एक अखिलेश यादव जी का जिक्र कर रहे हैं. मतलब मैंने तो आज तक कभी भी अखिलेश यादव जी को किसी ऐसे विषय के बारे में डिस्कशन करते हुए नहीं देखा जो गंभीर ना हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, आपको ज्यादा नॉलेज होगी, आप बताएं मैम. डॉक्टर पूजा मिश्रा प्लीज. राजीव जी आपको नमस्कार. नमस्कार. और प्रदीप जी को भी नमस्कार और मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द Thank डे you, टू thank you. प्रदीप जी. Thank you, Dr. और अभी आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये जो शब्दों का चयन किया उन्होंने विधानसभा में जी. वो किस लिए किया? तो मैं आपको बता दूं राजीव जी, वो इसलिए किया ना क्योंकि कोडिंग सिरप का मामला चल रहा है. आपको जानकारी होगी जी, ही. जी, आपको ये जी. भी जानकारी होगी कि मध्य प्रदेश में 22 बच्चे, राजस्थान में 3 बच्चे, उत्तर प्रदेश के अररिया में एक 22 दिन के बच्चे की डेथ हो गई सिरप पीने से. और उत्तर प्रदेश में अभी उस पर जांच चल रही है. सरकार नहीं मान रही है कि ये कोडिंग सिरप से हुई, कह रहे जांच की जाएगी तब इस पे पुख्ता किया जाएगा कि कोडिंग सिरप से हुई. अब इनमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, आपको जानकारी है कि नहीं, आलोक सिंह करके हैं जो एसटीएफ के जो है सिपाही थे, उनको निलंबित कर दिया गया हुआ है. वो इनके जो कुडीन भैया हैं उनके साथ में कार ले रहे होते हैं जौनपुर में, बिल्कुल रील वायरल है. और इसके अलावा चाहे वो अमित सिंह हो, चाहे उसके अलावा जो है ये जो मुख्य आरोपी है शुभम जायसवाल, जो जिसको जो है इन लोगों ने, सरकार ने भारत देश से बाहर भगा दिया हुआ है. अब कह रहे हैं कि हम वापस लेकर के आएंगे. तो ये जो इतना गंभीर मुद्दा है जिसमें सरकार पूरी तरीके से घिर गई हुई है, वो चाह रही है कि इस पे चर्चा ना हो. अगर वो जो है गिरे हुए शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, उनको लग रहा है कि अगर हम ऐसा शब्द का प्रयोग कर देते हैं जहां पे ये प्रश्न होने लग जाएगा कि भाई आपने नेता को गलत कह दिया, उस पर डाइवर्ट हो जाएगा रादर देन कि इस चीज पर डिस्कशन हो कि क्या परेशानियां चल रही हैं और मेजर परेशानी क्या है. ये जो मामला आप देख रहे हैं कोडिंग सिरप का, ये
हजारों करोड़ रुपयों का घपलों का मामला है और करप्शन का मामला है, जिसमें सरकार पूरी तरीके से इंडल्ज है। इनके मंत्री विधायक पूरे इंडल्ज है। और एक ही आप जौनपुर की बात कर ले तो जौनपुर में विद इन वीक जितनी महंगी महंगी गाड़ियां निकालनी चाहिए थी उतनी निकाली इनके नेताओं ने। जांच पता नहीं किस हद तक कर रहे हैं। इनके खुद के दो नेता एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो चोर है, नहीं वो चिंडी चोर है, इस तरीके की बातें चल रही है। तो उन सब जो रियल इश्यूज हैं इनसे इनको जवाब देना था कि कैसे शुभम जायसवाल भाग गया जब वो यहाँ पे था। तो घटना घटित होने के बाद में करप्शन निकलता है तो लोग नहीं पहुंच पाते अपनी शादी में, आपको फ्लाइट नहीं मिलती है, अपने आप घर के मैयत में नहीं पहुंच पाते क्योंकि आपको फ्लाइट नहीं मिलती है। पर अगर आप क्रिमिनल हैं तो आपके लिए फ्लाइट सजी सजाई रखी रहती है। एसटीएफ पुलिस अब आपको ढूंढती रहेगी, सरकार आपको फ्लाइट पकड़ाएगी और आपको बाहर भेज देगी, फिर यहाँ पे नौटंकी जारू कर देगी कि नहीं हम उनको पकड़ करके लेकर के आएंगे, हमने गठन कर दिया, कार्रवाई करेंगे। तो ये जो रियल इशू है इससे डाइवर्ट करने के लिए ये इस तरीके का शब्दों का चयन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस पे डिस्कशन नहीं हो, ऐसे ऐसे शब्द बोले जाए जिस पे डिस्कशन का पार्ट हो जाए। आप सोचिए अभी आप कोडिंग सिरप पे कर रहे होते ना, करप्शन पे कर रहे होते, कैसे भाग गया शुभम जायसवाल उस पे कर रहे होते, लेकिन नहीं हो रहा ना। बोल रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये शब्दों का प्रयोग किया, वो बौखलाए हुए हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, डॉक्टर पूजा, निशांत जी जो मंत्री है योगी गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा 33 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने 75 अरेस्ट किए, 75 लोगों को अरेस्ट किए। सरकार इज डूइंग इट्स वर्क, बट एक फोटोग्राफ दिखाकर उन्होंने कहा अखिलेश यादव जी ये बताए कि ये एक्यूज जो है ये कोडिन सिरप वाले ये अखिलेश यादव जी के फोटोग्राफ में कैसे हैं। तो वो फिर वो कह रहे हैं आरोप आप पर पूछिएगा कि ये जो 77 आरोपी हैं, ये जो 77 आरोपी हैं ना, हाँ जिनको ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है 77 लोगों को पकड़ लिया गया, आरोपी तो बहुत सारे हैं। तो ये जो 77 लोग पकड़े गए हैं इनमें से कौन किसका करीबी है? और इनमें से आप देखेंगे तो अमित सिंह की बात कर ली जाए तो अमित सिंह की जो फोटोग्राफ्स है वो डिप्टी सीएम के साथ ब्रजेश पाठक जी से लेते हुए ना जाने किन किन नेताओं के साथ में है, इनके सारे नेताओं के साथ में है, जिनके यहाँ पे हम तो कह रहे हैं कि आपको इससे क्या कि कौन कहाँ किधर की सब कार्रवाई करिए ना। 77 लोग में आपको एक लोग की फोटो मिल गई समाजवादी पार्टी के नेता के साथ में। समाजवादी पार्टी के नेता के साथ में तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की भी फोटो है, माननीय प्रधानमंत्री भारत देश की भी फोटो है। आपको एक फोटो मिल गई है तो आपको वो 77 लोग जो पकड़े गए हैं उनमें से आपको एक फोटो मिल गई है, आप मचा रहे हैं। बाकी 76 लोगों की फोटो किसके साथ में है? जिसको आपने बाहर भेज दिया शुभम जायसवाल, वो किसके साथ में था? आपका कहना है कि ये जो हजारों करोड़ों का घोटाला चलता रहा, ये जो गोरख धंधा चलता रहा आपके नाक के नीचे, आपके संरक्षण में नहीं हो रहा था। ये बहुत गलत बात है। ये सारा का सारा सरकार के संरक्षण में हो रहा था और इसीलिए इस तरीके की बातें लेकर के आ रहे हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की बात कर सके। आपको लेकिन यहाँ पर डॉक्टर मिश्रा पहले भी कहा था जांच। डॉक्टर मिश्रा वन स्मॉल थिंग, माय पॉइंट इज दिस, इतने सालों से, कितने साल हो गए अभी योगी जी की सरकार को? 8 साल हो गए शायद, जहां तक मैं जानता हूं। इट्स बीन 8 इयर्स। 9 साल होने आ गए। 9 साल, 1 साल रह गया। 1 साल रह गया 2027 में। हाँ 2025 तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट। 2027 में योगी जी को एक बार फिर चुनाव में लड़ना पड़ेगा। तो 8 साल से या 9 साल से ये धंधा चल रहा है कोडीन का, उसके पहले से भी चल रहा होगा शायद। नहीं, जीएसटी जो जिस शुभम जायसवाल की हम बात कर रहे हैं उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। जो रजिस्ट्रेशन इन है वो 30 जून 2017 को हुआ था और जो रजिस्ट्रेशन को हुआ था जीएसटी का वो जुलाई 2017 में हुआ था। और जो इसकी फर्म है, जो उसका नाम है न्यू वृद्धि फार्मा नाम है और शुभम जायसवाल इसके ओनर है, जो मुख्य आरोपी है, जो भागा हुआ है। उसके अलावा आप चाहे तो पूरे ट्रेड का है कि 89 लाख जो है पोर्टफोलियो था का अवैध 100 करोड़ अप्रोच का जो है उसने अवैध खरीदा है, बेचा है और उसके अलावा तस्करी में इन्वॉल्व रहा है। उसके अलावा जो कंपनीज है, विनोद फार्मा हो गया, अंबिका हेल्थ केयर हो गया, माँ दुर्गा फार्मा हो गया, डीएमसी कंपनी हो गई, श्री श्याम फार्मा हो गया, ये सारे इसमें इंडल्ज रहे हैं और ये सब सरकार की मंशा के बिना नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे यही पूछने जा रहा था कि 8 के 9 साल से ये चल रहा है, 8 के 9 साल से आपकी सरकार है, तो अभी हाउ कैन यू शिफ्ट द ब्लेम ऑन समाजवादी पार्टी और ऑन एनीबडी एल्स? भाई आपकी सरकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी ना। जी बताइए।
राजीव जी, यही तो प्रश्न सरकार से है ना कि आप पतली गली हमेशा पकड़ते रहते हैं। मैं जानते हैं इनका दो ही तीन पतली पतली गली है। एक पतली गली होती है कि आप जो है विपक्ष का नाम लेकर के पतली गली पकड़ लीजिए। दूसरा होता है कि आपको कुछ प्रश्न पूछ लिया तो आप कहेंगे आप हिंदू धर्म के विरोध में बोल रहे हैं, पतली जी। गली वो हो गई। तीसरी इनकी पतली गली हो रखी हुई है कि आप इनसे प्रश्न पूछने लग जाएंगे तो ये कहेंगे नहीं आप तो जो है राष्ट्र विरोधी हो गए, आप राष्ट्र पे प्रश्न पूछ रहे हैं। ये पतली गली पकड़ करके निकल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अगर आप देखेंगे इसका नेक्सस पूरे देश विदेश में फैला हुआ है। और जी। इस पे भी आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी गंभीर बात पे ऐसे हल्की बातें करते हैं। ये उनकी बौखलाहट है, वो नहीं चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो निकल करके सबके सामने आए या उस पर कोई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश का तो इतिहास हो गया इस सरकार में कि जांच बैठाई जाती है, एसटीएफ का गठन होता है, कन्विक्शन एक भी नहीं होते। इतने गंभीर गंभीर मामले हुए उत्तर प्रदेश में और आप देखेंगे राजीव जी, एक भी कन्विक्शन नहीं दिखेगा आपको कि हाँ इसका ये परिणाम निकल करके आया, ये कार्रवाई हुई। नहीं, बस जांच बिठाई गई। अभी ये भी नौटंकी चल रहा है, जांच बिठाई जा रही है, जांच बिठाई जा रही है। हमने 77 लोगों को पकड़ लिया हुआ है, इतने में छापेमारी की हुई है। सब नौटंकी बस दिखाने भर के लिए। सीट दारू पर वाला खत्म होगा, दारू वाला साहब। चीजें आगे बढ़ने लग जाएंगी, ये खत्म हो जाएगा। ये चुपके से फिर अपने लोगों को बचा के निकाल लेंगे। Darwala said the first time the RSS has come out very very firmly. जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रहा है, आरएसएस ने कहा कि दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। पॉलिटिकल गेमशिप इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि देश विरोधी इसको हम लोग बोले। तो हाउ डू यू सी द फर्स्ट टाइम द आरएसएस हैज कम आउट अगेन मुर्शिदाबाद सेज दिस इज नॉट अलाउड, दिस कैन नॉट कम हियर, बाबरी मस्जिद यहां पर नहीं हो सकता। दारूवाला साहब, सही पैनलिस्ट को, मेरे जो सहयोगी लोग हैं, आपको सब लोग को शुभकामनाएं। और मैं इस शुभ अवसर पे आपको ये कहना चाहता हूँ, जस्ट ऑन योर शो राजीव सर, पहले दिन मैंने कहा था अगर ये बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है और जिसको सहयोग ये जो है पीछे से समाजवादी और कांग्रेस जो दे रहे, ये विचारधारा को जो पनपने का जो बीज है, ये कहाँ से आया, ये किसका एमएलए है, ये भले एक स्टूज है, स्टूज। ये मायावती के गवर्नमेंट से बाहर, अपने ममता बनर्जी के गवर्नमेंट से समझो अगर ये बाहर आया है तो इसको किसने इतना पावर दिया। इसकी अगर आप टूल किट देखेंगे तो इसके सूत्र जो है वो तुम्हें लखनऊ और दिल्ली तक नजर आएंगे। और ये दो लोगों को अब इसके अंदर जो जो अब कार्रवाई होने वाली है, इसके अंदर सारी हकीकतें सामने आने वाली है। ये जो दो नेताओं ने पलायन किया है ना, इसके पीछे की आप विचारधारा सोच समझो और इसको आप लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। जब भी यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर सीरियस सवाल पूछे जाते, जैसा लास्ट मंडे को माननीय होम मिनिस्टर साहब ने घुसपैठियों के ऊपर जब बात करना शुरू किया तो पूरे ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया। जब ये लोग ने एसआईआर के ऊपर इतना हंगामा किया, जब इन लोग ने यहाँ पे बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के ऊपर इतना हंगामा किया, मुस्लिम इमिग्रेंट्स के बारे में इतना हंगामा किया, जब इसके ऊपर डिस्कशन का सवाल आया तो इन लोग ने वॉकआउट किया। अभी जो पूजा मैम यहाँ पे जो उनकी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कॉफ सिरप के ऊपर जो कह रहे थे, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इसके अंदर भले कोई भी पार्टी से हो, समाजवादी से हो, कांग्रेस से हो, भारतीय जनता पार्टी से हो, कोई भी व्यक्ति हो, कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, और वो भले कहाँ तक भी उसकी पहुंच हो, अगर उसके वजह से अगर हमारे देश में जान गई है, भले वो कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर मेरा विश्वास है। योगी जी इज अ वेरी क्लीन चीफ मिनिस्टर। आई एम श्योर ही विल नॉट स्पेयर एनीबॉडी। बेशक जैसा पूजा मिश्रा मैम कह रहे कि ये लोग देश से बाहर कैसा गए, क्यों गए, उनको उसके पहले बरामद क्यों नहीं किया। Yeah, there is a law, there is a lacuna, there has been lapses, but these lapses need to be corrected and it will be corrected. योगी जी जो है ये ऐसे नेक्सस वाले नेताओं के साथ, बिजनेसमैन के साथ या ऐसे कोई भी गैर व्यवहार करने वाले लोगों के साथ कोई भी तरह का से संबंध नहीं रखते और वो उनके सब में बड़े शत्रु है। और अभी आप एक विचारधारा देखिए, ये देश के अंदर जो गति से जनमानस ये केसरिया के साथ, सनातनों के साथ और जो हमारा एक सपना है इसके साथ जो जुड़ रहे, इसके चलते हुए सारे के सारे ऑपोजिशन पार्टीज, भले वो इन स्मॉल नंबर है, ये लोग भयभीत हो चुके हैं
और ये भयभीत के मारे, जैसे ये कह रहे थे कि हम लोग बौखलाहट में बात कर रहे, हम लोग बौखलाहट में बात नहीं कर रहे। हम लोग की जो मशीन है, रणनीति है, जो हमारी ईमानदारी सच्चाई की जो जीत है, महाराष्ट्र के अंदर जो एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस जिस रफ्तार से काम कर रहे, उसको रेप्लिकेट उत्तर प्रदेश में किया गया, उसको रेप्लिकेट बाकी अन्य राज्यों में किया गया। और ये विनिंग फॉर्मूला को आप देखो, दिस इज गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर, दारूवाला साहब, और बहुत जल्दी समाजवादी मुक्त उत्तर प्रदेश होने जा रहा है। दारूवाला साहब, आपने कहा कि योगी इज अ वेरी क्लीन पर्सन, वेरी क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड, मगर गोवा जब फायर ट्रेजेडी हो गया था, वहां के जो सीएम है, ही आल्सो बीजेपी गवर्नमेंट, उन्होंने तुरंत जो रेड कॉर्नर नोटिस, ब्लू कॉर्नर नोटिस निकालकर जहां से भी, थाईलैंड से, बैंकॉक से, पटाया से, उनको लेकर वापस आया। वी आर नॉट सीइंग दैट काइंड ऑफ अ मूवमेंट वेयर शुभम जायसवाल इज कंसर्न्ड in the Yogi main accused in the codeine syrup this scam. It's a big scam. Why इतना aggressive पहल क्यों नहीं हो रहा? दारूवाला साहब, डॉक्टर पूजा मिश्रा, as you feel क्या यहाँ पे थोड़ा ऐसा सेट लैप्सेस नजर आ रहे हैं, मगर आई विल टेल यू इन कमिंग नेक्स्ट 24 आवर्स जो उसको जो नोटिसेस निकालना है, जो भी करना है, कोई भी जायसवाल हो या नहीं क्या केसवाल हो, वो ये सरकार से, हमारे हाथों से भागकर नहीं जा सकता। Which is वो fine, दारूवाला साहब। धरती के कोई भी पाताल में हो या धरती के कोई भी जगह पर वो छुपा रहेगा, उसको एक्सट्राडिकेट किया जाएगा, उसको यहाँ पे लाके उसको शासन होगा, शिक्षा होगी, और जो भी हमारे संविधान के तहत कड़ी में कड़ी शिक्षा है उसे दी जाएंगी। लेकिन दारूवाला साहब, जो प्रदीप जी ने अभी कहा, लूथरा ब्रदर्स को फौरन एकदम जरा भी वक्त नहीं लगा, उनको वापस बुलाएगा एकदम। और अभी वो क्या है, मेहुल चोकसी और वो जो दूसरा कौन है सर, वो नीरव मोदी, नीरव मोदी, उनके ऊपर जो अभी कार्रवाई चल रही, बहुत जबरदस्त चल रही है, आप देखेंगे बहुत जल्दी वो भी आ जाएंगे वापस। बट एज फार एज जायसवाल इज कंसर्न्ड, ही इज पॉलिटिकली वेरी वेल कनेक्टेड टू द बीजेपी, ये भी आपको बता दूं। और दूसरी चीज जो है, जो आप हुमायूं कबीर की बात कर रहे थे ना, वो कौन आदमी है, कहाँ से है, उसके तार किससे जुड़े हैं? उसके तार तो आपसे जुड़े हैं सर, वो तो पहले बीजेपी में था। ही इज योर मैन, ही इज द वन हु गॉट आउट ऑफ ममता बनर्जीज पार्टी एंड ही वाज द वन हु अटैक्ड ममता बनर्जी द मैक्सिमम। और उसके बाद बीजेपी के जो लोकल यूनिट था, उनके साथ उनका कुछ झगड़ा हो गया तो वो वापस चले गए टीएमसी में। खैर वो बात एक है। दूसरी बात क्या है कि जैसे मैंने कहा, आई डोंट नो वेदर यू वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट और नॉट सर, अभी कल ही इनफैक्ट एक बहुत बड़ी सुरक्षा समिति की एक मीटिंग हुई है अबाउट द बांग्लादेश सिचुएशन। जो बांग्लादेश सिचुएशन, आ रहा हूं सर, व्यास साहब आप ही के पास आ रहा हूं। बांग्लादेश सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है सर। दारूवाला साहब, would you like to comment on that? My only comment is this, it's a very sad comment, by the way. In 1959, on March 31st, 1959, His Holiness the Dalai Lama came to India and was given refuge over here along with 80,000 Tibetan refugees. Otherwise, they would have all been killed by the Chinese. Continuing the same tradition, Prime Minister Modi has granted refuge to Sheikh Hasina, former Prime Minister of Bangladesh, who would have definitely been killed had she remained over there. कांग्रेस वाले बोलते हैं कि वो अलग था, ये अलग है। भाई कैसे अलग है भाई? और ये कहा जा रहा है कि इनको वापस भेजो। आप बांग्लादेशी इलीगल्स के खिलाफ एक्शन ले रहे हो ना, तो इनको वापस भेजो। हाउ डू यू लुक एट इट? हैज द कांग्रेस फॉरगॉटन इवन मिस्टर नेहरू? पंडित जी को भूल गए सर? अली दारूवाला साहब आप बताएं। See, I'll tell you one thing: the Bangladesh, which is going to cascade so badly, it's a mini Pakistan. It is going to blow out of proportion. There is going to be plebiscite. There is going to be killing. There is going to be daylight robbery over there. It is the time, rather than worrying about them, I feel, Rajiv sir, I'm a very small man to comment on border issues, but I feel if someone is listening to what I am saying, border security force needs to be strengthened. The wall needs to be built. And this infiltration once and for all, सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है is from ममता बनर्जी। उसको अगर काबू में लाकर वेस्ट बंगाल से लेके that full area is cordoned off, we can keep this cancer from growing. I am using very careful words, cancer. Bangladesh is a cancer. It needs to be totally cordoned off and stopped from spreading.
ये जो उनकी विचारधारा है, इतने इतने जिहादी किस्म के लोग हैं, इनके पीछे से आके अफगानिस्तान सुधर गया मगर बांग्लादेश को सुधरने का नाम नहीं ले रहा। वेल, if push comes to shove, our government is very capable of dealing with it, and Right. sure enough, I we hope would so. love I not to hope have so. any escalation with Let's go our to neighbors, Vyasa. but we all know this is a total planted and a very sochi samjivi sajish, and I would not be surprised if they have some agents in this country also जो इस्लामिक रिपब्लिक और इस्लाम एक्सट्रीमिज्म के नाम के नीचे यहाँ पर भी कुछ वो लोग करने के लिए वो लोग तैयार करेंगे। बैठे हैं। 100% करेंगे, ये उसमें कोई दो राय नहीं है ये सर। सब चीज सामने व्यास- आने वाली है। व्यास मैं जी- देखो यहाँ पे बड़ा विधान कर रहा हूँ, व्या- बांग्लादेश के रूट्स जो है यहाँ के एक्सट्रीमिस्ट लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। राइट, व्यास जी, ऐतिहासिक परफॉर्मेंस एकनाथ शिंदे जी। लोग कहते थे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स की एकनाथ शिंदे कैन ग्रो ओनली अंडर द शैडो ऑफ बीजेपी, मगर वो खुद ही आपने करीबन 50 जगह पर खुद के अपने मेयर अपने बल पर लेकर आए। इट इज फेनोमिनल परफॉर्मेंस बाय एकनाथ शिंदे दैट हैज ड्रॉप्ड उद्धव ठाकरे जी। बोलिए। नामबियाल जी, पहली बात तो ये आंकड़ा 61 है, हाँ। 50 से नहीं 61 है, और किसी की सेडो वैसा कुछ मतलब नहीं है। मेहनत रंग लाती है। जनता के बीच में आप सतत संपर्क में रहते हो तो जनता आपको अपने कंधे पे उठाती है और आपको विजय श्री प्राप्त करवाती है, सेवा का मौका देती है। किसको पीछे भेजना, किसको आगे भेजना, आप उन नेताओं की बात किए जिनका नाम मैं सम्मान के साथ नहीं लेना चाहता, कि जो कार्यकर्ताओं को तो कह दिए कि जाओ तुम हमारे पार्टी के टिकट पे चुनाव तो लड़ो, पर एक भी चुनाव प्रचार करने के लिए एक भी चुनाव क्षेत्र में गए नहीं। तो ऐसे अंतोगत्वा ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। स्थानीय जो लेवल पे चुनाव होते हैं नगर पालिका नगर परिषद के, उसमें हमारा एक आम साधारण कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। उसको हिम्मत दिलाने के लिए अगर उनका सर्वोच्च नेतृत्व मैदान पे नहीं उतरेगा, मात्र एक फॉर्म ए भी देकर के उनको कहेगा जाओ बेटा लड़ो, हम यहाँ बैठे एयर कंडीशन कमरों में, ऐसा नहीं। शिंदे के साथ ऐसा नहीं है। आदरणीय शिंदे जी ने महाराष्ट्र के एक एक कोने कोने में जाकर दिन रात एक दिन में 8-8, 9-9 मीटिंगें कर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया। वहां की जनता के बीच में जाकर के उनकी जो दुख और दर्द है, उनकी जो मांग है, उसके आश्वासन देने का काम किया कि हम लोग इसको जरूर इस पे ध्यान देंगे, और जनता ने उस पर विश्वास किया। नतीजा ये है कि हम किसके साथ लड़े, कहीं साथ में लड़े, कहीं साथ में नहीं भी लड़े, कहीं मैत्रीपूर्ण लड़े, लेकिन जनता के बीच में जो रहने का खामियां जो फायदा होता है वो हमारे नेतृत्व को निश्चित रूप से मिला। हमारे कार्यकर्ताओं का जोश और हमारे नेताओं का बढ़ाया हुआ मनोबल, ये हमको सफलता का राज है। ये दुरुस्त बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बीएमसी चुनाव में तो मतलब सुपड़ा साफ होने वाला है जैसे पहले लग रहा था। मतलब जो दोनों भाई हैं हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, राज ठाकरे साहब, मैं उनको बहुत बहुत सम्मान करता हूं उनका, और उद्धव ठाकरे जी, दोनों शायद साथ में आ रहे हैं। तो साथ में आने का कोई फायदा होगा सर उनको? आपको क्या लग रहा है? आपके खिलाफ कुछ है क्या? बजाज जी, मैं आपसे एक विनम्रता से कहना चाहता हूँ, 2024 अक्टूबर में हम लोग चले, पीछे विधानसभा का चुनाव हुआ था जी। दोनों भाइयों ने चुनाव लड़ा था, भले अलग अलग लड़ा जी। तो साधारण गणित क्या कहती है, अगर इकट्ठा हो जाएंगे कि दोनों को मिला के वोट होंगे, उतने ही आ जाएंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं आने वाले। अगर उनको और कोई ज्यादा वोट मिलने होते तो या तो इस भाई को या उस भाई को पिछले साल मिल गए होते। तो दोनों के वोट मिला लीजिए, एक के पास 0 है, एक के पास 20 है, तो पूरे महाराष्ट्र में 288 है। तो अब आप समझ लीजिए तो क्या दोनों के साथ आने का नतीजा क्या हो सकता है। तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे हौसला है, मनोबल है, जनता के अंदर एक विश्वसनीयता जो हमने प्राप्त की है अपने कामों के द्वारा, अपने जन सेवा के और जन कल्याण के द्वारा। विकास के कार्य जो लगातार मुंबई क्षेत्र में हुए हैं, विशेषकर जब एकनाथ राव जी शिंदे मुख्यमंत्री थे, उस समय जो विकास की धारा बही है इस मुंबई शहर में, वो जनता देख रही है, और उसका जो लाभ है जनता ले रही है। तो इसलिए जनता का विश्वास, हमें कहीं दो राय नहीं नजर आती कि आने वाली 15 जनवरी को जो चुनाव होगा और 16 तारीख को जो गिनती होगी, तो मुंबई महानगर पालिका ही नहीं, महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिका ये महायुति जीतने जा रही है। और यहाँ पर एक और भी खबर आ रही है सर कि कांग्रेस का जो हाल है इस वक्त ऐसा बेहाल है। डॉक्टर पूजा मिश्रा, सुनने वाली बात है, आप जरा सुने इसको। डॉक्टर पूजा मिश्रा, ये आपके लिए, जो समाजवादी पार्टी है ना अपनी, यहाँ पे अबू आसम आजमी साहब जिसके नेता हैं सर, उनकी परफॉर्मेंस कांग्रेस से अच्छी होने वाली है इस बार बीएमसी चुनाव में। ये आपको बता दूं, जो उनकी 5 सीट आती हैं वो 5 की 6 या 7 हो सकती हैं, कांग्रेस की उतनी भी नहीं आने वाली। ये क्या हो रहा है सर?
आज तक मैंने कभी ऐसा कांग्रेस के बारे में कभी नहीं सुना। आपने सुना है कभी? व्यास साहब, आपकी पुरानी पार्टी है, पूछ रहा हूँ आपसे। मैं तो 35 साल जिम्मेदारी के पदों पे वहां रहा हूँ। ये हालात क्या है मेरे से ज्यादा कौन जानता है, लेकिन आज की स्थिति में भाई बदले हुए माहौल में भी अभी तक उनका ये तय नहीं हो रहा पा रहा है कि भविष्य का कदम उनका क्या होगा। साथ में जाएंगे, इकट्ठा जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो किसके साथ लड़ेंगे। अभी मैंने कल सुना वो प्रकाश आंबेडकर जी के साथ मीटिंग कर रहे थे, 4 दिन पहले कह रहे थे कि शरद पवार जी के घर पे जाके उनसे समय मांग रहे थे। तो अभी तक उनका, कल से नॉमिनेशन भरना शुरू होने वाला है 23 तारीख को। अब तक उनका यही तय नहीं होगा हमारा इस चुनाव के मैदान में साथी कौन होगा। जब टीम ही नक्की नहीं है तो आप टॉस उछालने क्या जाओगे। आपकी जब टीम ही तय नहीं है तो आप चले हो मैदान में टॉस उछालने। तो इस बार सिंगल डिजिट आने वाला है, इस बार सिंगल डिजिट आने वाला है इस बार। इसका मतलब ये कि मेरे प्रतिस्पर्धियों के बारे में ये नहीं कहना चाहता, लेकिन हमारी पार्टी जो है और हमारी जो युति है वो जनता के बीच में हमारे द्वारा किए गए कार्य और हमारे द्वारा किए गए जनता की सेवा के आधार पर हम कह सकते हैं प्रचंड बहुमत हमें मिलने जा रहा है। फैंटास्टिक। मगर अभी जिस प्रकार से प्रकाश शिंदे जी, जो एकनाथ शिंदे जी के भाई है, ब्रदर है, उन पर जो यूबीटी के कंटिन्यूस अटैक्स जिस प्रकार से हो रहा है कि ड्रग पेडलर्स के साथ संबंध, वही होटल से खाना ड्रग पेडलर्स को मिलता था, तो सतारा ड्रग पेडलर्स में जितने भी हो गए प्रकाश शिंदे जी का कनेक्शन, तो ये कैसे, इससे कैसे बाहर निकल पे आओगे आप सुशील व्यास जी? हम अंदर कब गए जो बाहर निकल के आएंगे? नहीं, आप मुझे बताइए मेरे नेता एकनाथ राव शिंदे का इस तमाम प्रकरण से क्या मतलब है, मुझे बता दीजिए। कानून के ज्ञाता आप भी हैं, कानून के ज्ञाता मैं भी हूं, और अगर कानून से अगर देश चलता है तो मुझे बता दीजिए एकनाथ राव शिंदे का क्या लेन देन है इस पूरे प्रकरण से। अगर उनका कोई नाम आता है मैं भागूंगा नहीं। पूरी रात अगर आप मेरे से प्रश्न पूछेंगे मैं जवाब दूंगा और न्यायोचित जवाब दूंगा। आरोप लगाने के लिए कोई भी आरोप लगा लेते हैं। आरोप लगाने पहले जरा अपने गिरेबान में झांक के देखें कि वो पहले क्या थे और अब क्या है। और जिन नेताओं की वो आज बड़ी वफादारी के साथ सेवा करने टीवी में आकर के पानी पी करके हम लोगों को गालियां दे रहे हैं, उन्हीं नेताओं के बारे में 2 साल पहले वो क्या कह रहे थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ गए होंगे उन प्रवक्ताओं के बारे में। जी, लेकिन समाजवादी पार्टी, आई एम अमेज्ड रियली एंड ट्रूली स्पीकिंग, बिकॉज द रिपोर्ट्स आई एम गेटिंग, जिनके उनके जो पॉकेट्स हैं उनके अंदर वो अभी भी बिल्कुल वैसे ही बरकरार हैं। जो समाजवादी पार्टी के जो पहले 4 थे, अभी लगता है 7 हो जाएंगे। मुझे लग रहा है 2007 वाला जो उनका रिजल्ट था वापस आने वाला है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। एंड आई थिंक द कांग्रेस, दे विल हैव टू रीवर्क एज टू व्हाट दे प्लान टू डू, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। It's going to be really and truly difficult. To come back to डॉक्टर पूजा मिश्रा। डॉक्टर पूजा मिश्रा, चलिए ये तो बात हो गई कोडीन सिरप की, लेकिन अभी जो नॉर्मल क्राइम्स भी जो हो रहे हैं यूपी में, ठीक है, आपने माफिया को बाहर कर दिया, ऐसा आप कहते हैं कि माफिया सारी बाहर है वगैरह वगैरह। विल नॉट गो इनटू दैट, इफ यू वांट टू गो इनटू दैट यू वेलकम। क्या है कि जो मुस्लिम माफिया थी उसको आपने बाहर कर दिया, जो ब्राह्मण माफिया थी उनको भी आपने बाहर कर दिया, जितने यादव थे, सो कॉल्ड दबंग जितने यादव थे उनको भी कर दिया आपने, मतलब भेज दिया ना आपने ऊपर। लेकिन जो बाकी लोग हैं अभी तक चल रहे हैं, उनका तो वैसे का वैसे ही चल रहा है। जो बीजेपी में है उनके ऊपर तो कोई हाथ नहीं लगा रहा। और दूसरी चीज क्या हो रही है, अभी द रिपोर्ट्स आई एम गेटिंग ओवर हियर, देयर आर हॉरिफिक क्राइम्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन उत्तर प्रदेश। पहले ऐसे नहीं होता था। व्हाई डू यू थिंक दैट इज? वो ऐसा क्यों हो रहा है मैम? क्या जो क्राइम एंड डिटेक्शन है उत्तर प्रदेश की अलग अलग जिलों की, उनकी क्या ड्यूटी कहीं और लगा दी गई है, या पुलिस का जो खौफ हुआ करता था पहले वो जरा कम हो गया है, या फिर जो ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मिनिमम से मिनिमम 1,80,000 और भर्तियां होनी है, वो अभी तक नहीं हुई है पिछले 10 साल से। तो क्या ये वजह हो सकती है? प्लीज राजीव जी, जो पुलिस का कार्यभार है ना, उसको जो है बदल करके इस सरकार ने बना दिया है गवर्नमेंट सीजिंग कार्यभार। ये वजह है। जितने भी पुलिस ऑफिसर्स आपको दिखेंगे ना, जो आपको हाईलाइट होते हुए दिखेंगे, आप देखेंगे उनकी बयानबाजी ऐसे आ रही होगी जैसे किसी पॉलिटिकल लीडर की आ रही हो, वो भी सत्ता पक्ष के, विपक्ष के नहीं। एक बार के लिए अगर उनके बयानबाजियां ऐसे निकल करके आए कि जो लगे विपक्ष का है, तो लगे कम से कम सरकार से प्रश्न पूछना चाहते हैं। पर यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर पुलिस विभाग का डीएम आपको देख करके जो है हाथ में गदा लेकर के चलता हुआ दिखे, आपको लीड करता हुआ दिखे किसी प्रोसेशन को, आपत्ति नहीं है। हर किसी की धार्मिक आस्था हो सकती है, पर आप यूनिफॉर्म पहन के ऑन ड्यूटी आप किसी प्रोसेशन में अगर जो है अपनी धार्मिक को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, तो सिमिलरली आपको दूसरे धर्म का भी होगा तो भी आपको फ्लॉन्ट करना चाहिए, वो नहीं दिखेगा। आपने देखा होगा कि जो है संबल के सीओ का क्या स्टेटमेंट आया हुआ था कि
अगर आप जो है चाहते हैं कि हम आपकी सेवैयां खाएं तो आपको गुजिया खानी पड़ेगी। आप छत पे नमाज मत पढ़िए। इस तरीके की जो आ रही पुलिस ने जो कार्यभार ले लिया, वो कार्यभार ले लिया है कि नेताओं को कैसे प्लीज किया जाए, जी इसलिए क्राइम रेट बढ़ा हुआ है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस मतलब इतनी करप्ट पुलिस, पुलिस तो वही है, पर इतना करप्शन जो है, हमें लगता है जब से मैं जानकार हुई हूँ, चीजों को देख रही हूँ, तब से कभी नहीं देखा कि ये मतलब एक ही चीज में ये ईमानदार है। वो ईमानदारी है कि जो ज्यादा पैसे देगा उसका काम करेंगे। राजीव जी, अगर आपका काम सही है, आपने कम पैसे दिए हुए हैं, प्रदीप जी का काम जो है गलत है और उन्होंने ज्यादा पैसे दे दिए, तो प्रदीप जी के साथ में बिल्कुल ईमानदारी रहेगी और काम होगा। अगर मान लीजिए प्रदीप जी का काम गलत है, उन्होंने कम पैसे दिए, आपका काम सही है और आपने पैसे भी ज्यादा दिए हैं, तो राजीव जी उसके साथ भी ईमानदारी रहेगी और आपका काम जरूर होगा। उसके अलावा पुलिस का कोई कार्यभार नहीं रह गया हुआ है। वीआईपी पे यहाँ पे नतमस्तक होना आपने नहीं देखा होगा, वो सलूट भी मारने लग गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो हाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो इन्हीं सब चीजों से प्रसन्न होते हैं और वो इसी चीज में इंडल्ज हो रखे हुए। और एक चीज हो रखी है, जो भी आपने कहा ना कि माफियाओं को खत्म कर दिया तो कैसे बढ़ गया, ये जो इनको संरक्षण दे रखा हुआ है स्वजातीय माफियाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अब ये बोरा गए हुए हैं, क्योंकि पैसा बिल्कुल करप्शन से ले लिया हुआ है, कोडिंग सिर्फ से सबने इकट्ठे कर लिए, गाड़ियां महंगी से महंगी खरीद ली हुई है, अब भी बिल्कुल बोरा गए हुए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा, इनको इतना इनका जो है बोरापन ऊपर चढ़ गया हुआ है कि आपसे आपत्ति हो रही है, इनको पता हम आपको मार देंगे, हम इनके स्वजातीय हैं, हमको बचाया जाएगा, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। और जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो इतना प्लीज करने में बिजी है कि जैसे उसको पता चलेगा कि इनके नाम के आगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सरनेम लगता है, वो ऑटोमेटिक आपके सामने नतमस्तक रहेगी। वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे होगी, आप बताइए क्या करें, हम आपको ले चले, हम आपके ऊपर में एफआईआर दर्ज कर दें। अगर हम मान लीजिए आपको एफआईआर दर्ज करते तो हम इस तरीके से आपको बाहर निकाल देंगे, आप कोई बलि का बकरा ढूंढ करके लाइएगा, उस बलि के बकरे को हम सूली चढ़ा देंगे। तो ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में और उसी का रिजल्ट है कि इस तरीके से क्राइम आपको देखने को मिल रहा है। और जितनी रिपोर्ट आप तक पहुंच रही है ना राजीव जी, वो भी कम है। ये बिल्कुल सच्चाई है। ये जो सत्ता का नशा है, ये जो भाजपाइयों के ऊपर में बिल्कुल बौराहट आ गई है, होता नहीं है ये इस तरीके की जब बौराहट आती है तो दिखता है। एक कॉमन नागरिक के तौर पे भी मैं कहूँ तो ये बौराहट जो आई है सत्ता पक्ष के लोगों के अंदर में, इनके पतन की तरफ लेकर के जा रही है जनता, इसलिए तरफ हो रही है। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, अखिलेश यादव जी ने बीजेपी को डिफाइन किया एज कम्युनल एंड कैपिटलिस्ट। कम्युनल है एंड कैपिटलिस्ट है और काम सिर्फ कैपिटलिस्ट लोगों का काम हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में जैसे मोदी जी का सेंटर में आरोप लगता है। बट मोहन भागवत जी ने क्लियर कट कहा, मोहन भागवत जी ने क्लियर कट कहा, आरएसएस इज नॉट एंटी मुस्लिम, आरएसएस इज नॉट एंटी मुस्लिम। जो भी इस देश को अपना मातृभूमि मानता है वो सब हिंदू है और वो सब हम उनको गले लगाएंगे। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मुस्लिम्स वेयर आरएसएस इज कंसर्न्ड। तो फिर अखिलेश यादव जी का ये स्टेटमेंट कम्युनल एंड कैपिटलिस्ट किस प्रकार से आप जस्टिफाई कर सकते हो? ये अब जस्टिफाई करने की क्या जरूरत है, हाथ कंगन को आरसी क्या। आप देखेंगे हर जगह पे जहां पे कम्युनल एंगल नहीं भी आ रहा होगा वहां पे भी, अभी हम 3 लोग 4 लोग बैठे हो डिबेट में, कोई अगर भाजपा के नेता आ जाए, मैं तो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठते हैं, पता नहीं आप लोग कहाँ से संजीदा लेकर के आते हैं, आप अटैक नहीं कर सकते, बड़े संजीदगी के साथ में बात कर रहे होते हैं। तो आप अगर यहीं पे कोई आ जाए, भाजपा का कोई नेता आ जाए जो कम्युनल एंगल करेगा ही करेगा क्रिएट, इसमें अगर हमें से कोई मुस्लिम रहेगा तुरंत क्रिएट कर लेगा। एक तो जो है एक्सपीरियंस भी हमारा डिबेट में बैठे हुए हैं, वो उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है तो उसको बोलो कि आप पाकिस्तान चले जाओ, बाद में उनका ध्यान गया कि नहीं ये तो डॉक्टर पूजा मिश्रा है, ये सरनेम तो मिश्रा लग रहा है, तो इनको ये आहत नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो है ये भाजपा का कार्यभारी चलता है। और कैपिटलिज्म तो आप देख ही रहे हैं, वरना कोडिंग सिरप का इतना बड़ा मामला नहीं चल रहा होता और गरीब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा होता। गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है, जो इकोनॉमिस्ट है उस बात को जानते होंगे कि भारत देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ जो हो रही है वो के शेप है, के शेप इकोनॉमी की भाषा में कही जाती है, जिसमें अमीर अमीर होता चला जाता है, गरीब गरीब होता चला जाता है, बीच की खाई बढ़ती जाती है। तो कैपिटलिज्म तो सामने एकदम साफ है कि आप उनके लिए कार्य कर रहे हैं। और जहां तक बात रही मोहन भागवत जी का, तो मोहन भागवत जी न जाने क्या क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि 75 साल में आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, कभी वो नाराज हो जाते हैं कि नड्डा कह रहे हैं भाजपा अलग है और आरएसएस अलग है, कभी मोहन भागवत जी आकर के कह रहे होते हैं कि नहीं हमें भाजपा के चश्मों से मत देखिए। मतलब ये मोहन भागवत जी सेकुलर होना चाह रहे हैं, भारतीय होना चाह रहे हैं, आरएसएस का होना चाह रहे हैं, या भाजपा का होना चाह रहे हैं, या भाजपा को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है।
और एक प्रश्न मेरा भी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा था, उनसे था, उन्होंने बोला कि अगर जो है ये दोनों भाई एक साथ होकर के लड़ते हैं तो देख लीजिए 20 + 0 क्या हो जाएगा, 20 ही होता है। मतलब इतनी सिंपल अगर मैथमेटिक्स चल रही होती राजनीति में, फिर आप जो है 5 बार के विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाते और 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बनाते? मतलब अगर सिंपल मैथमेटिक्स तो अगर इसमें देखा जा रहा तो आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो 7 बार का सांसद होना चाहिए था, सांसद बड़ा है एमएलए से, और आपने ऐसा किया नहीं है। तो जब आप ही वो मैथमेटिक्स फॉलो नहीं करते, ना अलजेब्रा फॉलो करते, ना ट्रिग्नोमेट्री, तो फिर ये आप मैथमेटिक्स वहां दूसरे पार्टियों पे कैसे लगाने के लिए चले जा रहे हैं? तो राजनीतिक की जो मैथमेटिक्स आप फॉलो कर रहे हैं वही दूसरी पार्टियों पर लगाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज वो घमंड कहा तो जाएगा। मैं जाता हूँ अली दारूवाला साहब के पास फ्रॉम द बीजेपी, एंड आफ्टर दैट आई विल कम टू यू सुशील व्यास जी, यू कैन रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन एट दैट टाइम. But just one small thing before I go, Dr. Pooja Mishra, the sanction strength of the Uttar Pradesh over the years has approximately been around 4.15 lakhs. 4,15,000 के करीब सैंक्शन स्ट्रेंथ है. एक्चुअली अगर यूनाइटेड नेशंस के फिगर देखे जाएं कि 2,22,000 की स्ट्रेंथ के ऊपर कितने पुलिसमैन होने चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, उसके हिसाब से मिनिमम 5.5 लाख होने चाहिए पुलिस वाले. और अभी 4.25 लाख की स्ट्रेंथ के ऊपर भी, 4.25 लाख नहीं है, 4,15,000 है, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर भी तकरीबन 37% वैकेंसीज हैं, 37%. सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट इन एनी इवेंट द यूपी पुलिस टू फंक्शन? अरे फंक्शन कैसे करोगे? आई थॉट यूपी हैड अ सरप्लस बजट. अब तो उनका बजट भी बड़ा अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है. इन टर्म्स ऑफ जीडीपी यूपी इज नंबर 2 इन द कंट्री. तो अभी तो पुलिस वालों को तो रिक्रूट करना चाहिए ना मैम. डॉक्टर मिश्रा, करने की इच्छा नहीं रखते, इनको करने का इच्छा नहीं रहती है ना. जब ये करप्शन का चैनल ढूंढ लेंगे, इनको पता चलेगा कि हम अपने लोगों को किस तरीके से घुसाएंगे और वो बाहर निकल करके नहीं आएगा, तब ये करेंगे. अभी तो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, आंदोलनरत हैं, उनके लिए वाटर कैनन रेडी रहता है, वो मार्च करते हुए पहुंच रहे होते हैं. आपको पता ही होगा, मैंने आपके डिबेट में कहा था कि आपका 15 दिसंबर को स्वागत है, आइए उत्तर प्रदेश में. तो जब तक ये एजुटेशन चलता रहेगा, इनको पता है कि हम चुपके से भर्तियां नहीं कर पाएंगे जो हम करप्शन करना चाहते हैं, तब तक ये किसी भी प्रकार की भर्तियां करने की इनकी इच्छा नहीं. इनको नौकरियां देने की इच्छा नहीं है, इनको नौकरियां देनी है. मुझे आपको जानकारी है कि नहीं, जो है विधानसभा में आरओ की भर्ती हुई थी, 80 सीटों के अगेंस्ट में 2 लाख एप्लीकेशन आए हुए थे, और उन 80 सीटों में 37 वीवीआईपी के रिश्तेदार निकले. मतलब 2 लाख एप्लीकेशन में आपको 37 जो है 80 सीट के अगेंस्ट में वीवीआईपी के रिश्तेदार मिल जाते हैं. अब वही करना चाह रहे हैं वो. उत्तर प्रदेश की जो युवा है ये करने नहीं देंगे. इनको पता है मास एजुकेशन इस तरीके से चल रहा है युवाओं का, अभ्यर्थियों का, और पुलिस भर्तियों में एक बार झेल चुके हैं कि पुलिस भर्ती में आप कभी आइएगा, जब पुलिस भर्ती का एग्जाम रहता है उत्तर प्रदेश में, उस नज़ारा को देखिएगा, आपको सड़कें खाली नहीं मिलेंगी. सड़कों पे जो अभ्यर्थी होते हैं वो सो रहे होते. इससे पहले भी जब पुलिस भर्ती की वैकेंसी निकाली गई थी, एक पोस्ट के अगेंस्ट में, मैं सिर्फ फीमेल की बात करूं तो 127 एप्लीकेशन आए हुए थे. तो आप पूछिए कि बेरोजगारी किस हद तक है और सरकार कितना करप्शन करना चाहती है कि भर्तियां निकाल नहीं रही. उनको ऐसा नहीं कि वैकेंसीज अगर चले जाएंगे डिफरेंट सेक्टर्स में अवेलेबल है, पर वो कंप्लीट नहीं करना चाहते ना. उनको करप्शन की होता नहीं, मुंह में Right, खून so लग गया let me go to उनको पैसा चाहिए ही चाहिए. let me go to Mr. Daruwala. Mr. Daruwala, you've been praised. आप very rare praise for you, sir. क्या बात है सर, आपकी प्रशंसा हुई है इतनी जबरदस्त तरीके से. Because you're the head of the minority cell of Maharashtra of the RSS, so, and you've always been a very balanced kind of a chap. Now, I'd like to ask you, sir, we have this horrendous, absolutely horrendous video from Memon Singh in Bangladesh, where a Hindu youth has been set on fire. And later on, an investigation found that he had said nothing. पहले उन्होंने कहा था हुजूर के बारे में उसने कुछ उल्टा सीधा बोला था, लोगों ने आकर के मार दिया उसको. ऐसा बाद में मालूम पड़ा ऐसा कुछ नहीं है, बस दिल कर रहा था मारना किसी को तो मार दिया उसको. सर आप ये बताएं, ये सब चीज़ें रोज़ हो रही हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ पर आकर के बोल रहे हैं इंडियन हाई कमीशन के सामने, हाई कमिश्नर वापस जाओ. डोंट यू थिंक वी शुड रिकॉल आवर हाई कमिश्नर एनीवे एंड से थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, एज यू सेड राइटली, जस्ट ब्लॉक द बॉर्डर. और ये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, कहीं और आना चाहते हैं, अरे भाई अपने दोस्तों के पास जाओ यार, हमारे पास क्यों आ रहे हो? व्हाट डू यू थिंक दारूवाला साहब? And all the stuff that we are sending across to Bangladesh, including rice, including medicines, including other pharma, including industry, including power, by the way, all that should be stopped. And we should say, fine, thank you, you don't need us. You can become East Pakistan again, हमारी बला से. Don't you think so, Dr. Ali Daruwala साहब?
आप बताएं। राजीव सर, प्रदीप सर, देखो आपके माध्यम से मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने ये सारी चीज होते हुए देखा है। राष्ट्रीय मुस्लिम संघ जो है हमारा, उन्होंने ये बांग्लादेश में ये ट्रबल आते हुए देखा है, और ये ट्रबल और आने वाले दिनों में एस्केलेट होने वाला है। इट इज अ लॉलेस स्टेट। वो वेस्ट बंगाल के अंदर उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो चुका है, अगर ये कहना गलत नहीं हो सकता कि इसके अंदर कोई दूर दूर तक ममता बनर्जी का भी कुछ हाथ हो सकता। ये इंस्टेबिलिटी लाने के लिए, हिंदुओं को प्रोसिक्यूशन करने के लिए, दैट्स अ और न्यू वहाँ वन। पे जो अराजकता है, वहाँ पे अराजकता जो है चल रही है, जी। और वहाँ पे ये सब जो काम चल रहा है, उसको, इससे हमने इतना दूर रहना है, इतना परहेज करना है, क्योंकि ये कैंसर, मैंने ये कंट्री को कैंसर करके कहा है। ये कैंसर की हमको आवश्यकता नहीं है। हमें कंसंट्रेट करना है उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर पूजा मिश्रा मैम के नाक के नीचे से 2000 मुसलमानों को मैंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस के प्लेटफॉर्म के अंदर उनको मैंने लास्ट वीक प्रवेश करा के मैं आज पुणे आया हूँ सर। तो आप देखिए, समाजवादी पार्टी जिसके जान पे उड़ी मारती थी, वो मुसलमानों को अपनी बाप की जागीर समझती थी, और वो उनके वोट्स के ऊपर जो ये लोग ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो ने क्या एक नंगा नाच जो मचाया था, वो आज खत्म होने जा रहा है। मैं पूजा मिश्रा मैम के आपको उनके माध्यम से ये उनको अगवा करना चाहता हूँ। ये अखिलेश यादव नेताजी की जो सरकार है, वो सिर्फ और सिर्फ मायावती मैम ने जो छोड़ा हुआ था, वो लेगेसी वो साफ करने के लिए वो लोग आए थे। वो आज मुसलमान लोग समझ चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश का सारा मुस्लिम समुदाय ये आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, ये माननीय योगी जी के साथ में है। और लॉ एंड ऑर्डर को सुधरते हुए रास्ते के आने से, देखो जहां पर रास्ते आते हैं ना सर, वहां पे इकोनॉमी बूस्ट होती है। और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बूस्ट होते हुए आई कैन सी एंड आई कैन इमेजिन द पेन। पूजा मिश्रा मैम को जो पेन होता रहेगा यहाँ पर बैठ के, उन्हें एक ऐसी चीज को डिफेंड करना है जिसका कोई बुनियाद ही नहीं है, जिसका कोई ए नहीं है, किसका कोई जेड नहीं है। वो ऐसी पार्टी के लिए यहाँ पर भेजे जाते हैं। मैं उनका प्रणाम करता हूँ, उनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। शी इज प्रोटेक्टिंग द नॉन एग्जिस्टिंग। तो मैं उनका आदर करता हूँ, उनको ज्यादा अटैक नहीं करते हुए उनका मैं विनम्रता से कहता हूँ, अगर पूजा मिश्रा मैम अगर बहुत ही ज्यादा होशियार है, तो उन्होंने ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का फॉर्म भर के एक सदस्य बन जाना चाहिए, क्योंकि एसपी जो है कुछ दिनों में ये सारे इनके नेता ये इंडिया छोड़ के भागे हुए दिखेंगे आपको। दारूवाला साहब, So, जी so, राम so, जी so, बिल, so already said, he told her to come to BJP instead of going to Pakistan. जी राम जी बिल, जी राम जी बिल, सोनिया गांधी जी ने आज टोटली आपको क्रिटिसाइज किया है। बोले दिस बिल इज एंटी महात्मा गांधी बापू एंड एंटी पुअर। उससे पहले राहुल गांधी जी ने कहा था कि विड्रॉ दिस बिल, this is anti poor, but today I think the presidential assent also has come. Now how do you see that? संसद से सड़क तक कांग्रेस एक आंदोलन चालू करने वाला जी राम जी बिल के ऊपर। डॉक्टर या अली दारूवाला साहब, प्रदीप सर, एक बात समझना चाहिए, ये जो एसआरआई के ऊपर, वोट चोरी के ऊपर जो एक साल ये लोग ने गला फाड़ फाड़ के जो बवाल किया, अगर ये लोग पार्लियामेंट में आते हैं तो इनको हमारे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऐसा घेरने वाले हैं। तो ये जो जी राम जी का बिल जो है, वो सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है पार्लियामेंट से भागने का। और मैं तो एक बात कहता हूँ यहाँ पे, अगर एक बात किसी को नहीं मालूम, तो हमारे जो महात्मा गांधी पिता महान जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, उनका आखिरी वर्ड क्या था? उनके जब उनको गोली मारा नथुराम गोडसे जी ने, तो उनका आखिरी वर्ड था हे राम। तो हे राम ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है। और अगर वो बिल के नाम से जी राम जी, अगर हम वो बिल का नाम देते हैं, उसके अंदर संशोधन लाते हैं, ट्रांसपेरेंट लाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लाते हैं, उसका री रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके अंदर से बोगस बिचौलिया को अगर हम निकालते हैं, तो इसके अंदर उनको दुखता क्यों है उनके पेट में? उनके जो जूने जूने जो नहीं क्या, जो गांव के उनके जो होते थे, जो स्कॉर्पियो लेके घूमते थे, उनकी अब स्कॉर्पियो बिकने का वक्त आ गया करके इनको ये हे राम से निगृहित जी राम जी का बिल, ये उनको हजम नहीं हो रहा है। Right. So I think Pooja Mishra ji wanted to राजीव intervene. जी, I'm just coming to you, बिल्कुल, सुशील क्योंकि जी। हाँ। मुझे जी, अब बोलिए। मेरे पास सिर्फ एक मिनट का टाइम है, मैं जी। दूसरे वेब में जाऊंगी। तो आप कुछ sorry, बोलना पहले चाहेंगे की- जो दारूवाला साहब ने interrupt कर दी। आपको इनविटेशन दिया है बीजेपी में आने के लिए? मुझे देते रहते हैं, मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है। जी। और अगर जिसको लगता है कि मैं अच्छी व्यक्ति हूँ, तो जान ले कि अच्छा व्यक्ति अच्छे पार्टी में रहता है, तो इसलिए मैं माइंड नहीं करती हूँ। एक चीज उन्होंने बोली, या तो जो है आप यहाँ रहेंगे, या तो फिर जो है आप देश छोड़ करके जाएंगे। तो
एक कहावत चलती है उत्तर प्रदेश में, एक लख पूत सवा लख नाती, रावण के घर दिया न भाती। तो घमंड तो जो है रावण का नहीं रहा, तो आपका भी घमंड ये चूर चूर हो जाएगा। उसके बाद में आ जाते हैं जी राम जी, बार बार कह रहे थे ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। पहली बात तो यहाँ पे वो जो जी है, दूसरा फिर ग्रामीण, यहाँ पे राम जी की चर्चा तो हो ही नहीं रही है। तो इसमें आप जबरदस्ती ईश्वर जी को ना लेकर के आए। ये लोग हमेशा, मुझे लगता है कि ये भी एक इनकी पतली गली है कि कुछ भी हो जाए तो सीधा राम जी को घसीट लाते हैं, कभी जी। पॉलिटिकल मंचों पे, कभी सदन में, तो कभी जो है धार्मिक चीजों में लेकर के घसीटने लगते हैं। नहीं, वो ईश्वर है, उनको ईश्वर ही रहने दिया जाए, ज्यादा बेहतर रहेगा। राजीव जी, बस इतने को इंटरप्ट करना था क्योंकि मुझे जाना Thank you था। very much, ma'am. Thank you very much. And I hope the UP government takes action against these codeine scamsters very, very quickly because lots of kids have died. Thank you very much. Namaskar, ma'am. व्यास जी, जब एकनाथ शिंदे जी आरएसएस हेडक्वार्टर्स गए थे और कहा कि आरएसएस एंड द शिवसेना आइडियोलॉजीज इज सिमिलर, तभी यूपीटी के बहुत सारे नेता ने कहा कि क्या आरएसएस गद्दारों का पार्टी है, 50 करोड़ लेने वाले, इसमें आरएसएस क्या कहेंगे। कुडालकर पे एफआईआर हो गया, जो आपके एक संसद हुआ करते थे। शीरशाट जी पे बैग लेते हुए पे देखा हो गया, दलवी जी के भी वही बैग पैसे। तो यूपीटी एक सब एक्सप्लेन करने लगे। यू वांट टू टॉक अबाउट दैट, लाइक हाउ कैन यू एंड आरएसएस बी द सेम लाइन? सुनो ना, मेरे को एक कप चाय दो वो, और ये लोग का सर, पानी सर, मत सर। पिलाओ। व्यास जी, सर वो दारू वाला साहब अपनी चाय मंगा रहे हैं, मंगाने दो उनको सर, हमें नहीं पिलाते कभी, लेकिन बोलिए सर। व्यास जी प्लीज। मैंने कहा कि मंगेश कुडालकर इज स्टिल इवन टुडे एमएलए Okay. ऑफ मुंबई सिटी। हाँ। तो अब उसने जो क्या किया, समाज सेवा के रूप में अगर कोई सामुदायिक भवन बनवाया अपने एमपीएलए फंड से, तो उसके बारे में अगर कोई है तो मुझे बताइए कि उसको पास करने वाला कौन आदमी होता है। क्या कुडालकर जी ने खुद ने वहां पर पैसे लगा दिए, या प्रशासनिक माध्यम से वो पास होकर के बाकायदे जो भी उसके मापदंड है, क्राइटेरिया हैं, उसको पूरा करते हुए वो काम हुआ है। तो वो अगर नहीं भी हुआ, ठीक है, तो उसमें शिकायत हुई, उसका हम लोग कानून अपना काम करेगा। अब दूसरी बात, आपने जो बड़े महत्वपूर्ण बात कही कि आरएसएस के मुख्यालय पर जाने पर हमारे दल के संस्थापक के पुत्र ने कुछ कहा, जो खुद बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम लोग लगभग 25 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सहयोगी दल के रूप में रहे। तो भाई उस समय आरएसएस नहीं था क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ? तब आपको आरएसएस अच्छा लगता था क्या? तब आपको आरएसएस में सारी कमियां नहीं दिखती थी क्या? नहीं, हम ये जानना चाहते आरएसएस में ये बदलाव जिनका जिक्र आज वो कर रहे हैं, वो क्या कब से आया? 2014 या 19 के बाद आया कि उसके पहले भी था? तो ये तमाम चीजें खाली हताशा निराशा में कुछ भी कहना, एक राष्ट्र के प्रति समर्पित जो संगठन है उसके बारे में, ये ठीक नहीं है। वो एक अपना आदर सम्मान, हम सहयोगी दल है और हमारी विचारधारा उस विचारधारा से मिलती जुलती है। तो निश्चित रूप से नागपुर में सेशन था विधानसभा का, हमको बुलाया गया, हमारे तमाम नेता के साथ हमारे विधायक जो है आरएसएस मुख्यालय में पहुंचकर वहां पर उन्होंने नतमस्तक हुए और उस विचारधारा के प्रति नतमस्तक हुए जो देश के प्रति समर्पित है। तो उसमें क्या गलत काम है जी? ऐसे तो कोई, कम से कम सोनिया जी और अन्य पार्टी के जो तमाम जिस तरह की गतिविधियां करते हैं, उस तरह के काम तो आरएसएस नहीं करता। कम से कम देश के हित में, समाज के हित में, समाज कार्य और रचनात्मक कार्यों को लेकर आरएसएस बढ़ता है। और इस तरह की कोई चर्चा करना, जिन नेता का आपने नाम लिया, मैं तो आजकल नेता उनका नाम नहीं लेता हूं, तो उनके लिए शायद ठीक नहीं लगता। कम से कम अपने पिताजी के योगदान को ध्यान रखें, जिनके साथ वो कई वर्षों तक इसी दल के साथ सहयोगी के रूप में रहे। तब आरएसएस भी उतना ही नजदीक था भारतीय जनता पार्टी के जितना आज है, उससे कम ज्यादा नहीं था। इसलिए सब कहना बेमानी है। ठीक है, राजनीति में बयान दिए जाते हैं, उन्होंने भी दे दिया जी। लेकिन भैया बड़ा अजीब है, विच इज वेरी स्ट्रेंज। आई मीन हाउ कैन यू अटैक द आरएसएस? 1989 में यू एंटर्ड इनटू फुल फ्लेज्ड अलायंस, और आज तक, मतलब तकरीबन आज तक ही थे ही आप, मतलब ऐसा तो नहीं कि नहीं थे। अब ठीक है, पार्टी आपकी जो है वो जरा तितर बितर हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी है। नहीं, शिवसेना तो आज भी है, उनकी शिवसेना नहीं रही। उनकी शिवसेना, अब चलिए वो कहते हैं कि आप जो हैं, आपने डाका डाल दिया उनके ऊपर, मतलब वैधानिक रूप से देश की न्यायपालिका जो कहती है वो तो हम मानते हैं, देश की न्यायपालिका कहती है, हमारी शिवसेना सही से। और महाराष्ट्र की जनता ने 3 बार निर्णय ले लिया
सवा साल में। लेकिन ये एक चीज असली तो शिवसेना मानना कल भी पड़ेगा। वो 2 डिजिट में नहीं आ पाए, पर हमारे नेता के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में डंका बजाया। लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा, एकनाथ शिंदे जी जिस प्रकार वो काम कर रहे हैं, बाप रे बाप, मैंने उनको पहले भी देखा हुआ है। पहले भी मुझे एकनाथ शिंदे जी से मिलाने वाले आनंद दिघे साहब थे, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि ये एकनाथ शिंदे जी भी इतने ज्यादा डायनामिक हैं। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, दी manner in which the man works is amazing, really and truly speaking. Whether you may agree with his political ideology or not, but जो काम करते हैं और जितने लोग उनके पास अपना काम लेकर के जाते हैं, दारूवाला साहब सुनने वाली बात है। मतलब मैंने आज तक कभी देखा नहीं एकनाथ शिंदे जी को पोस्टपोन करते हुए कोई चीज। कोई उनके सामने समस्या है, उसी वक्त प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। ब्यूरोक्रेट्स को ये हिदायत है कि अगर आपने इस पे एक्शन नहीं लिया तो आपका क्या असर होगा, आपको मालूम होना चाहिए। बट दैट आई थिंक इज अमेजिंग, रियली एंड ट्रूली अमेजिंग। I want to ask व्यास जी, एकनाथ शिंदे जी के स्लोगन था मी रडणारे नाही लढणारे आहेत, और पूरे महाराष्ट्र सुना और बहुत उनको अप्रिशिएट भी किया। दैट्स हाउ लीडरशिप इज ऑल अबाउट लड़नारे। मगर आप चुनाव जीतने के बाद इतने ठोस आप मांग रखे बीएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कि हम 125 से कम लेंगे ही नहीं, 125 चाहिए। अब फडणवीस साहब पकड़ के बैठे 150 और 125 तो 200, तो कहाँ क्लाइम डाउन तो होना पड़ेगा। दोनों ऐसे पकड़ के बैठे कि 150 में लूंगा और एकनाथ शिंदे जी 125 से कम नहीं लूंगा। व्यास जी किस प्रकार से समाधान? दोनों दलों की जो आपस में सीट शेयरिंग के लिए मीटिंग्स हो रही हैं, आप व्यक्तिगत जानकारी पे कह रहे हैं या सूत्रों की बात पे कह रहे हैं? अगर आप सूत्रों की बात पे कह रहे हैं तो ठीक है, अगर आप व्यक्तिगत जानकारी पे कह रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं आपकी व्यक्तिगत जानकारी, क्योंकि दोनों दलों के नेताओं ने प्रेस के सामने आके कहा कि 227 सीटें हैं, उसमें से हमारी 2 बैठकें हुई है, 150 पे सहमति बन गई है, बाकी 77 सीटों पे भी बातचीत शुरू है, 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। तो ये तो है यथार्थ बात। अब वो सूत्रों के अनुसार तो आप कह दीजिए कि युति ही नहीं होगी, अलग लड़ेंगे, तो बात अलग है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऑफिशियल तौर पे कहना चाहता हूं, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव महायुति के रूप में हम लड़ने जा रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद होने वाला नहीं है। आप देखेंगे 1-2 दिन में सारा ये जो सीट का एडजस्टमेंट है वो पूरा हो जाएगा। और यही नहीं, जिस बात की चर्चा हमारे अभी बजाज जी अभी कर रहे थे, कल 23 दिसंबर है, पहला दिन है नॉमिनेशन भरने का। बजाज जी हम सबको बुलावा आ गया है, सुबह 11 बजे शिवाजी पार्क में आदरणीय बाला साहब ठाकरे के जो समाधि स्थल है वहां नतमस्तक होकर के हमें मुंबई महानगर पालिका का ये जो रण है उसमें शंख बजाना है। सब तमाम जिम्मेदार पार्टी के साथियों को वहां पे एकनाथ शिंदे जी ने बुलावा भेजा है। उनके नेतृत्व में हम नतमस्तक होंगे हमारे संस्थापक के सामने, और हमारी ये 227 सीटों को किस तरह से जीता सके युति को, इसका कार्यभार हम शुरू करेंगे। लेकिन आपने अजीत पवार को छोड़ दिया सर बीएमसी में। मैंने युति कहा, मैंने महायुति कहा, मैंने 2 दल नहीं कहा। सर महायुति कहाँ सर? बीजेपी ने तो मना कर दिया, उन्होंने कहा भाई नवाब मलिक साहब आपके साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, उसका जवाब वो दे देंगे। बीजेपी का प्रवक्ता बैठे मेरे भाई अली दारूवाला जी, वो जवाब दे देंगे उसका। दारूवाला साहब आप बताइए, देवेंद्र फडणवीस साहब ने बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया है आपके अमित साटम। किसी का जो स्ट्रेंथ होता है उसको हमने जानना है, परखना है, पहचानना है। मैंने आपसे पहले कहा था जो विदर्भ रीजन जो है, विदर्भ रीजन, वहां पे एकनाथ शिंदे जी इज अनटचेबल। जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है, यहाँ से पूना से लेके कोल्हापुर गोवा बॉर्डर तक, वहां पे एनसीपी का जो प्रभाव है दैट इज अनटचेबल। इट इज रियली लाइक you cannot compare it. We have to accept certain places where the dominance is there, and when you accept the geographical strength, the shortcomings, and you do the समीकरण वो हिसाब से जब जाके ये कोलिशन गवर्नमेंट सक्सेसफुल होता है। शुभ युति में है करके, इनफैक्ट यू विल बी वेरी सरप्राइज राजीव सर, you will be very surprised. Pune के अंदर there are so many sitting Congress corporators, Congress people who, where Ajit Pawar ji has said in today's newspaper, it's a headlines. अगर जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़ी, अगर परमिटेशंस और कॉम्बिनेशंस अगर मैच होते तो कांग्रेस के लोगों को भी साथ में लेकर ये शहर के उन्नति के लिए, अगर डेवलपमेंट के लिए हमें अगर साथ में जाना पड़े तो हम लोग साथ में जाएंगे। दिस कॉर्पोरेशन इज अ डिफरेंट बॉल गेम। जब ये कोई इलेक्शन जो मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के महाराष्ट्र का नेतृत्व के जो महाराष्ट्र असेंबली पोल है
जहाँ पे तीनों हमारे नेता बैठ के काम करते हैं, उससे ये काफी अलग है सर। स्मॉल पॉकेट से 10 और 20,000 और 40,000 के मतदान है, उसके अंदर अगर मुस्लिम पॉपुलेशन है, अगर हमारे पास नेता नहीं है तो हमारी यूटी के अंदर हमने एकनाथ शिंदे जी का और हमने अजित पवार जी का सहायता लिया है, ताकि वो सरकार के अंदर वहां पे लोगों को लाने में उनकी सहायता हो सके। So there's a lot of permutation and combinations which has been working out over here. It is not necessary. If we do not have candidates, that doesn't mean our coalition is in shambles. What do That you is to be see? What do you understood. think will happen in Pune? You're from Pune. What do you think will happen there? Sir, you'll be so surprised over here. See, the dominance in Pune, where Ajit Pawar ji is our guardian minister over here, he has a very strong hold. Yes. Over here, we need some Muslim candidates from which are coming from Congress. यहाँ पे राष्ट्रवादी के साथ में हाथ मिलाने के लिए तैयार है, उनके मीटिंग्स चल रहे हैं यहाँ पर। So it's too early for me to announce anything because we are at a very premature level of discussion over here. But Pune also, it is a very mixed area. We have Muslim pockets, we have Brahmin pockets, we have Maratha pockets, and we have Buddhist pockets over here. तो ये At सारा one time it used to be a- परम्यूटेशन के साथ काम कर रहा है और बहुत ज्यादा मंथन यहाँ पे हो रहा है। And we At have one got time it very used to be powerful a- it leaders used to who be a are Congress overseeing all stronghold. these operations. Yeah, at one time it used to be a Congress stronghold when Suresh Kalmadi used to be at the height of Yeah, power. yeah. But not Yeah, yeah. anymore. Not anymore. But in Not any anymore. event, as far as the Congress is concerned, the Congress has kind of, I think, perfected the art of shooting itself in the foot. So, as Mr. Vyas would probably tell you more about it, कांग्रेस से कोई सीखे कि कैसे जीती हुई बाजी हारे, वो व्यास साहब आपको ज़्यादा बता सकते हैं। तो मतलब उन्होंने तो कांग्रेस ने तो आज तक कभी जो उनके साथ लोग रहे हैं, जो जिन्होंने उनके लिए बहुत काम किया है, उनको आज तक कभी रिस्पेक्ट नहीं किया है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। एटलीस्ट as far as the BJP is concerned, we can't say the same for the BJP. BJP at least respects everybody. On that there is no doubt. Right, gentlemen, thank you very much. It's been a great pleasure. And it's very cold in Maharashtra. I hope you are keeping yourself well, and I hope you are having lots and lots of hot stuff. I could see Darwala Saab ordering tea for himself, having burger, having whatever. आज तक Only तो खिलाया नहीं। चलिए, thank you very much, gentlemen. Sushil Vyas ji, Darwala Saab, namaskar, and congratulations on today's results. परिषद के Thank you, results आए thank कल you. वाले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी Thank you. बहुत मुबारकबाद। Fantastic. Thank you. Right, that's just about it as far as tonight's show is concerned. To all our viewers all over the world, thank you very much for joining us. It's been a great pleasure. And Pradeep ji, I've been getting a lot of calls from Dubai and from Yes, and from the United Arab Emirates and from Abu Dhabi and elsewhere, where people are actually watching the channel. So keep watching. It's absolutely great. And if you haven't subscribed to the channel को subscribe जरूर करिएगा भैया. Please. When you subscribe, when you press to the icon, subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now. Or that's just about it as far as tonight's show is concerned. And a very, very happy birthday again to Pradeep ji. Pradeep ji is the Thank you so real much. backbone of Nation Now. Without Thank you him, so Nation Now would not exist. So very, very happy birthday to him from all of us over here. और आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद. Jai Hind.